Welcome again, class. So last day we discussed about the earthquake hits Bhuj. What is the date? That time 26 January 2001 in the Republic Day, you can say. Okay. Now read the earthquake, a case study given in the form of headlines that appeared in the newspapers after the quake. Arrange the events in the right sequence of their happening. So there are the seven happenings and they are not arranged properly. So you can arrange. Okay. So a massive earthquake measure 6.9 on the Richter scale. It hit Bhuj town on the 26th January 2001. Okay. So one by one, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 we have the हैपनिंग एयर ओके एंड इवेंट्स इन द राइट सीक्वेंस ऑफ देयर हैपनिंग। तो इसको हमने राइट सीक्वेंस में करना है, ये केस स्टडी है उसकी, ठीक है। नाउ इमेजिन इफ अ क्विक सडनली शॉक या शुक इन द मिडिल ऑफ द स्कूल डे, वेयर वुड यू गो फॉर सेफ्टी। इफ अगर ऐसा कुछ होता है और वो रेगुलर डे है स्कूल का, ठीक है, और अचानक से क्योंकि हम अर्थक्विक जोन में आते हैं, वी आर इन द प्रोन एरिया, अर्थक्विक प्रोन एरिया, ओके, जोन 5, वेरी डेंजरस। ओके, नाउ अर्थक्विक, नाउ प्रिपेयरनेस। सो फर्स्ट वन, वेयर टू टेक शेल्टर ड्यूरिंग ऑन द अर्थक्विक। सपोज अर्थक्विक्स आता है तो उस समय क्या करना चाहिए, ठीक है, जो ऑन द स्पॉट, जो अगर हमारे कुछ दिमाग में जो उस समय चीज़ें हैं, सेव स्पॉट एट फर्स्ट अंडर अ किचन काउंटर टेबल और डेस्क अगेंस्ट एंड द इनसाइड कॉर्नर और वॉल, so you can stay there. Okay, stay away from fireplace, areas around chimneys, windows that shatter including mirrors and pictures frames, इनसे हमने दूर रहना है, ठीक है। Be prepared, spread awareness amongst your friends and family members and face any disaster confidently. Okay, no need to be panic and understand what happens, okay, and what's going on. Okay, so sorry. So whenever the earthquake occurred, you can say that time the your sixth sense, yeah, your mind is working properly, okay, and safe spot, stay away from, be prepared, okay. And we can learn little bit about that one. Earthquake is measured with the machines called a seismograph, that is called seismograph, a little bit machine you can saw here, but it's not a little, it's a very big one. And the magnitudes of the earthquake is measured on the Richter scale. An earthquake of 2.0 or the less can be felt only a little. An earthquake over 5.0 can cause damage from things falling. 6.0 or the high magnitude is considered very strong, and 7.0 is the classified as the major earthquake. So 2.0 that is called minor one, okay, but major one is 7.0 या 6.0 से ऊपर को जितने भी जो अर्थक्विक यहाँ पर रिकॉर्ड किए जाते हैं। और ये मशीन किस तरह से काम करती है मैं आपको दिखा रहा हूँ। ओके, सो ये एक मशीन है जिसमें क्या लगा होता है, एक कुछ इस तरह से ये अर्थक्विक को मेजर करती है, ठीक है। ये एक बेलनाकार मशीन होती है, आप कह सकते हैं सिलेंडर जैसा है, ठीक है, और इस पर ये कुछ लगा हुआ है, जो एक निब लगी हुई होती है, जो क्या करती है, इसको कुछ इस तरह से इस कागज़ पर या इस बेलनाकार जो चीज़ है उस पर निशान बनाती रहती है। और ये निशान जब ज़्यादा गहरे होने लगते हैं या फिर जब ज़्यादा कुछ इस तरह की पैटर्न बनाने लगते हैं, तो इट मीन्स ये बहुत ज़्यादा अर्थक्विक या बहुत बड़े या मेजर अर्थक्विक के साइन होता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा था कल भी, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हाँ, एनिमल्स जो होते हैं वो कुछ बहुत वो प्रिडिक्ट कर लेते हैं इस चीज़ को, या फिर उनको पता चल चुका होता है कि हाँ ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है। सपोज जो ये वाली लाइन थी हमने पढ़ी थी, ठीक है। So, earthquake prediction methods adopted locally by people including the studying animals behavior. Animal के behavior से यह पता लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। Okay, now we learn the next one. So,
major landforms. The landscape is being continuously worn away by the two processes, weathering and erosion. So weathering is the breaking up of the rocks on the earth surface, that is called weathering. Erosion is the wearing away of the landscape by different agents like water, wind and ice. Okay, and the eroded material is carried away or transported by water, wind, etc., and eventually deposited. This process of erosion and deposition create different landforms of the surface of the earth. सो मेजर लैंडफॉर्म्स जो बनते हैं वेदरिंग और इरोजन की वजह से बनते हैं. ठीक है, वेदरिंग मीन्स जैसे क्या होता है, डिपोजिट होना. ठीक है, और इरोजन मतलब क्या है कि वह ख़त्म होना धीरे धीरे. ठीक है, जैसे ये कह सकते हैं कि ये जो इसका घाट बना हुआ है, ठीक है, ये जो एरिया बना हुआ है ये किसकी वजह से बना है, ये बना है वेदरिंग की वजह से. ठीक है, और ये एरिया जो गोखुर बनी हुई है डिपॉजिट हो गया यहाँ पर. ठीक है, जमा हो गया एक अलग तरह से, एक अलग फॉर्म बन गई यहाँ पर, एक ऑक्सबो लेक बन गई है. ठीक है, तो प्रोसेस कौन कौन सी है, वेदरिंग और इरोजन. कन्फर्म. ओके, नाउ वर्क ऑफ द रिवर. रिवर क्या काम करती है, द रनिंग वाटर इज द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप. लैंडस्केप बनाती है. ठीक है, व्हेन द रिवर टम्बल्स at thumbles, you can say, at step angle over very hard rock of the down to step valley, it is from the waterfall. इसे क्या कहते हैं, वाटरफॉल कहते हैं. जब नदी क्या करती है, हार्ड रॉक को कट करके, ये हार्ड रॉक है सपोज, और यहाँ से इसमें से क्या आ रहा है, पानी आ रहा है. ठीक है, और ये हार्ड रॉक को इसने क्या कर दिया, कट कर दिया, दैट इज कॉल्ड वाटरफॉल. तो यहाँ आपने कई और वाटरफॉल देखे होंगे, सुने होंगे. ठीक है, बरसात में काफ़ी कुछ पहाड़ों में देखने को मिलता है. ठीक, व्हेन द रिवर थम्बल या टम्बल्स एज अ स्टेप एंड एंगल ओवर, ये एंगल बन रहा है, ये आप देख रहे हो, ये इसको हम कहेंगे एंगल. ठीक है, ये एंगल बनाता हुआ आ रहा है. ठीक, नेक्स्ट वन, as the river events the plains, it twist and turning from forming large bands known as the meanders. ये जो बना रही है इसे हम कहेंगे meander. ठीक है, कुछ इस तरह से. विसर्पी कहते हैं, हिंदी में से विसर्पी कहा जाता है. ड्यू टू द, सांप की तरह कह सकते हैं हम. ड्यू टू द कंटिन्यूस इरोजन एंड डिपोजिशन अलोंग द साइड ऑफ द meander, द एंड्स ऑफ द meander लूप कम क्लोजर एंड क्लोजर. देखेंगे आप, ये कम क्लोज होते रहते हैं. ठीक है, जैसे सपोज ये यहाँ से नदी आई और उसका जो डिपॉजिट होता रहता है इस एरिया में, तो ये क्लोज होती रहती है. ठीक है, नदी का आकार बदलता रहता है. ठीक है, साइज जो है वो चेंज होता रहता है. नाउ इन ड्यू कोर्सेज ऑफ द टाइम द meander लूप कट्स ऑफ फ्रॉम द रिवर एंड फॉर्म अ कट ऑफ लेक ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सबो लेक. इसको ऑक्सबो लेक कहेंगे. ठीक है, ये कैसे बनी, कि हो सकता है कभी यहाँ से बहती हो. ठीक है, लेकिन हुआ क्या, इरोजन की वजह से हम कह सकते हैं, या डिपोजिशन की वजह से इस एरिया में न बह करके वो इधर की ओर आ गई. तो ये जो एरिया बच गया, ये गोखुर झील कहलाती है. ठीक है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सबो लेक. वो गाय के फुट के तरह जो झील बन गई, क्योंकि उस एरिया में पानी जमा रह गया, तो दैट इज कॉल्ड ऑक्सबो लेक. ठीक, नाउ एट टाइम्स द रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक. दिस लीड्स टू द फ्लोडिंग of the neighboring areas. As it floats in the deposit layer of the fine soil and other material called the sediments along its bank. This is called the formation of the flat fertile plain. ये जो आगे की ओर नदी बह करके आई, ठीक है, ये फ्लड प्लेन बन गए. ठीक है, ये है फ्लड प्लेन, जो ये हिस्सा और ये हिस्सा दिखाया जा रहा है. ठीक है, ये मियंडर हो गया, ये ऑक्सबो लेक हो गई, ये लीव्स हो गई. ठीक है, जो बाहरी हिस्सा है उसका, और तो उससे क्या बना दिया, इस एरिया में फ्लड प्लेन बना दिया, जैसे गंगा और यमुना का फ्लड प्लेन है. ठीक है, द रेज्ड बैंक्स कॉल्ड लेविस या लीव्स, लेविस कहेंगे, इस एरिया को हम लेविस कहेंगे. ठीक है, तटीय इलाका कह सकते हैं. The raised banks are called as the rivers approach the sea. The speed of the flowing water decrease, and the river beings to break up into a number of streams. You can say here, okay, that is called delta. इसी को हम डिस्ट्रीब्यूट होना, यानी कि पानी, ये नदी आई और जैसे ये समंदर में पहुंचने से पहले ये क्या हो गई, अलग अलग भाग में बढ़ गई. ये जो फॉर्मेशन बनी इसकी, दैट इज कॉल्ड डेल्टा. ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी दोनों में अंतर बेटा. ठीक है, ट्रिब्यूट यानी कि उसमें जमा होना. बहुत सी नदियाँ मिल करके क्या करती है, एक नदी को बनाती हैं. जैसे सपोज
ये ट्रिब्यूटरीज हो गई, ये एक नदी की, ठीक है। अब यही आगे जा करके डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, दैट इज कॉल्ड डेल्टा, जस्ट लाइक अ सुंदरवन डेल्टा, ठीक है। तो ये है डेल्टा, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, दैट इज डेल्टा, ठीक है। नेक्स्ट वन, work of the sea waves. Now we learn about the sea waves. The erosion and deposition of the sea waves give us rise to the coastal landforms. Sea waves continuously strike on the rocks. Cracks develops over the time. They become larger and wider. Thus, hollow या hole like the caves are formed in the rocks. They are called sea caves. जिसको हम sea cave कहते हैं, जैसे ये बन गया, ठीक है। पानी के थपेड़ों से या पानी से लगातार क्या होता है कि इस एरिया में क्या हो गया, पानी घुसता रहा और धीरे धीरे जो हार्ड रॉक है वो धीरे धीरे कटती रही और जिससे क्या हो गया, सी केव्स बन गई, ठीक है। और वैसे ही वो पानी जब ज़्यादा बढ़ गया, वो केव्स ज़्यादा बड़ी हो गई या पानी जो है ज़्यादा फोर्स से आने जाने लगा तो सी आर्च बन गया। फिर क्या होता है, फिर ये एरिया केवल ठूंठ की तरह खड़ा हो जाता है, ये स्टैक्स हो गया, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, ये एक दिन में नहीं बनता बल्कि धीरे धीरे हो सकता है, ठीक है। सो वी लर्न हियर द सी केव्स, सी आर्च and stacks also. The steep rocky coast rising eventually almost vertically above the water is called sea cliffs. The sea waves deposit sediments along the shore forming the beaches. और उसके बाद फिर किसका जन्म होता है, बीचेज का भी होता है, ठीक है। जैसे ये अगर हम समंदर मान लेते हैं, यहाँ पर एक रॉक थी और इस रॉक को धीरे धीरे पहले क्या किया, कट किया। पहले ये क्या हुआ, कैसे बनी, ये सी केव्स बन गई, ठीक है। सी केव्स के बाद फिर धीरे धीरे ये थोड़ा सा बड़ा होने लगा, ये आर्च बन गया, आर्च बना, उसके बाद फिर धीरे धीरे ये एरिया फिर कट होने लगा। बाकी क्या हो गया, ये सब इरोज हो गया, इरोड हो गया, या हम कह सकते हैं कि इरेज हो गया, ठीक है। बचा क्या, कुछ ठूंठ जैसा बच गया केवल, तो उसी को हमने नाम दिया क्लिफ, कुछ ऐसे, ठीक है। तो ये है, ये बाकी जगह समंदर है नीचे, ठीक है। और ये चट्टान जो है स्टैक जैसी बच गई, और यही इसी तरह के चट्टानों को हम क्लिफ भी कहते हैं, ठीक। नाउ वर्क ऑफ द आइस, तो वी लर्न अबाउट द वर्क ऑफ द सी वेव्स, अर्लियर सी वर्क ऑफ द रिवर्स, नाउ वर्क ऑफ द आइस। सो ग्लेशियर आर rivers of ice which to erode the landscape by the bulldozing soil and the stones by expose the solid rocks below. Glacier crave out deep holes there. As the ice melt, they get filled up with the water and become the beautiful lakes in the mountains. The material carried by the glacier, such as the rocks, big and small, sand and silt, gets the deposit. These deposit from the glacial moraines. इसे हम glacial moraines कहते हैं, ठीक है। बर्फ़ पड़ी और बर्फ़ में वहाँ पर क्या हुआ कि कंकड़ पत्थर जो भी चीज़ें हैं वहाँ पर वो सब जमा हो गई, और बाद में जब फिर पहाड़ों में क्या होता है, ग्लेशियर टूटते हैं तो फिर लैंडस्लाइड, या हम कह सकते हैं कि पूरा एक हिमस्खलन हो जाता है, ठीक है, जिसको हम एवलांच कहते हैं, वो स्थिति बन जाती है, ठीक है। और ग्लेशियल मोरेंस यानी कि वो ग्लेशियर की ही जो नदी बनती है आगे की ओर आती है, ठीक है, जिसकी वजह से चमोली में आपने सुना था, ठीक है, एक इंसिडेंट हुआ, एक एक्सीडेंट हुआ, not incident. Work of the winds. Now last one, have you ever visited a desert, try to collect some picture of the sand dunes, so you better than know. Okay, an active agent of the erosion and deposition in the desert is wind. In the desert you can see rock in the shape of the mushroom, commonly called the mushroom rocks. Okay, कुछ इस तरह की, ये पहले पूरा पहाड़ी था, ठीक है, पत्थर रहे होंगे, यानी कहने का मतलब ये है कि एक चट्टान रही होगी, लेकिन हवा ने क्या किया, इसके इस वाले एरिया को इरोड कर दिया पूरी तरह से, ठीक है। और क्या बन गया, फिर ये मशरूम रॉक्स बन गई, कुछ इस तरह की रॉक्स हो गई, ठीक। नेक्स्ट वन, winds erode the lower section of the rocks more than upper part, therefore the such rocks have narrower base and wider top. When the wind blow, it lifts and transports sand from one to another place. When it stops blowing, the sand falls and get deposited to low hills like the structure. These are called the sand dunes. They are called sand dunes. So you can see here sand dunes. Okay. When the grains of sand are very fine and light, the wind can carry it over the very long distance. When such sand is deposited in the large area, it is called the losses. Large deposit of losses is found in the China, just like in China. ठीक है, तो ये सैंड ड्यून्स हैं, हवाई, और धीरे धीरे फिर ये एरिया यहाँ कवर हो गया और ये पूरा का पूरा दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गया, ठीक है। किसकी वजह से, हवा, क्योंकि रेत जो है वो हल्की है और हवा बहुत तेज़ी से चल रही है, तो वो क्या करती है, इन सैंड ड्यून्स को एक जगह से दूसरी जगह की ओर ले जाती है। ये सैंड ड्यून्स है, ठीक है, जो ये दिख रहे हैं आपको, या हम सीधे इसको पिक्चर में भी देख सकते हैं,
yes, here they are called sand dunes. ये जो दिख रहे हैं आपको, ठीक है, ये जो है ये सैंड ड्यून्स है, ठीक। तो ये इस तरह से हवा आई तो ये एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफॉर्म होते रहते हैं दूसरी जगह पर, ठीक है, ड्यू टू द wind. Okay, so work of wind we can learn. Now question and answer you can do very well. Okay, I hope you enjoyed this chapter. So in this time we learn about the Oxbow Lake, we learn a little about the waterfall. Okay, find out the names of the few rivers of the world that form a delta, just like Sundarban Delta I said earlier. Also I told you Ganga and Brahmaputra Delta, Mahanadi Delta, Godavari Delta, Kaveri also. Okay, Narmada and so Tapti not made delta. Okay, so it's enough for today. Thank you.